I began watching YouTube videos about NFTs and pixel art, as I found pixel art a really easy form of artwork to learn. So I watched a few YouTube videos and then went on to create my first collection called Minecraft Yeehaw, which consisted of 40 small Minecraft characters, which were all handmade. And I then uploaded all 40 manually to OpenSea. So I was just getting used to OpenSea and the minting on OpenSea and how it works, your collection, changing the banner, changing the collection profile picture. So I worked on Minecraft Yeehaw, and unfortunately I didn't sell any of them, but I gave one away on Twitter. But I learned a lot about NFTs just from doing Minecraft Yeehaw as my first collection. And after this, I wanted to enter the generative space in this NFT sector. So I started work on Weird Wells. So I created all the traits and base layers in an online website, fed them into an open source Python script kindly shared by another collection called Boring Bananas. And you press run on that script and it's just amazing because you can just see all the whales hatching on your screen. And I remember my dad came back from a 2-hour walk and me and my brother, we were standing around the computer and we were shocked how amazing these whales looked. We never thought that they would come out so nice and pixel perfect. So after this, I started work on the smart contract. And the smart contract is quite easy. You just look at the existing standard smart contract and just change the variables. So when it says maximum supply of tokens, you change that to your maximum supply. But the hard bit I needed my dad to help me with was when you connect the smart contract to the website. So I created the layout for the website with all the buttons, but then my dad then helped me connect the smart contract to the website. So when you press mint, it uses a mint function on the smart contract. I then wrote a thread on Google Docs on how I was able to do this at the age of 12, and me and my dad sat down, looked through it, did some final touch-ups, and I then posted this thread on Twitter. I had, I think, 50 followers at the time, not that many, but I think because V from Boring Bananas, the NFT collection I talked about earlier, he retweeted it, and after a few hours, the thread went viral. So initially we thought about 200 in the beginning, but then when you kept reloading the page, 100 more transactions would come through. And I remember me and my dad, I think it was about 9 o'clock in the afternoon, me and my dad went downstairs and we said on Twitter, wow, thank you so much for connecting with my story and wanting to buy these Weird Wells. हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल को सपोर्ट मिले और ग्रो हो। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि एक छोटा लड़का 12 साल का, उन्होंने क्या कमाल किया वो आप सुनिए। बेंजामिन अहमद नाम है उस लड़के का। वो लंदन यूके का रहने वाला है, जिन्होंने अपने डिजिटल कला और प्रोग्रामिंग कौशल के माध्यम से बहुत सफलता हासिल किया है। उसका पिता इमरान अहमद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिन्होंने बेंजामिन और उनके भाई को 5 वर्ष की आयु से ही कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया। बेंजामिन ने अपनी पहली NFT नॉन फंगिबल टोकन कला संग्रह मिनीक्राफ्ट यीहा 2021 लॉन्च की, जिसमें 40 पिक्सेल अवतार थे। हालांकि यह संग्रह तुरंत सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इसके बाद विल्ड वेल्स नाम का NFT संग्रह तैयार किया, जिसमें 3350 पिक्सेल वेल्स शामिल था, प्रत्येक अपनी विशेषता के साथ। इस संग्रह में उन्होंने जुलाई 2021 में लॉन्च किया। यह मात्र 9 घंटे में पूरी तरह बिक गया उसका, जिसमें उसने लगभग 80 ईथर की कमाई हुई, जो उस समय लगभग $1.5 के बराबर था। बेंजामिन की इस सफलता से उन्हें NFT समुदाय का एक प्रमुख स्थान दिलाया। दिसंबर 2021 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्स ने उन्हें पेमब्रोक कॉलेज में NFT का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया।
उसको भाषण देने के लिए बुलाया, जिससे वहां व्याख्यान देने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति थे। ये बच्चा था, मतलब वो सब तो आदमी था, बट ये बच्चा फर्स्ट टाइम 12 साल का बच्चा जाके वहां पर सबके सामने में अपना जो उसने जो किया है उस सब के बारे में, कि कोडिंग के बाद उसने कैसे क्या क्या किया वो सारा बताया। बेंजामिन की कहानी यह दर्शाता है कि उम्र के परवाह किए बिना लोग तकनीकी कौशल के माध्यम से कोई भी उपलब्धि कर सकता है। तो सच ये कहानी है, ये जो काफी वायरल हो रहा है कि 12 साल का एक बच्चा बेंजामिन अहमद नाम का लंदन यूके से 2021 में NFT नॉन फंगिबल टोकन से लगभग 1 मिलियन कमाए। उसने खुद को NFT आर्ट सीरीज बनाई थी, वर्ल्ड वेल्स और इसे ऑनलाइन बेचा था। ये स्टोरी इंटरनेट में धमाल मचा चुकी है। आज भी NFT क्रिप्टो कम्युनिटी के ये इम्प्रेशनल एग्जाम्पल है। 10 साल का जो बच्चा है NFT से कैसे कमाए पैसा, $1 मिलियन। तो इसका यह है कि क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ 10 और 12 साल का बच्चा भी करोड़पति बन सकता है, वो तो स्कूल पढ़ते पढ़ते। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कुछ छोटे से जीनियस की कहानी जिसने NFTs बेचकर कमा लिए $1 मिलियन। बात लंदन की एक बच्चे बेंजामिन अहमद की है। जब दुनिया लॉकडाउन में थी, ये बच्चा कोडिंग सीख रहा था। उसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज में इंटरेस्ट था। फिर उसने इंटरनेट में सीखा NFT बनाना और एक सीरीज बनाई, वर्ल्ड वेल्स, जिसमें डिजिटल वेल्स की यूनिक आर्ट थी। उसने उन्हें इथेरियम ब्लॉकचेन पर मिंट किया और बेच दिया। कुछ ही दिनों में उसे $1 मिलियन मिल गया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उसने कभी बैंक अकाउंट तक नहीं बनाया था। सारा पैसा क्रिप्टो वॉलेट में गया। तो कहने का मतलब यह है, उम्र किसी चीज का मोहताज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो आप कभी भी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको इधर उधर शैतानी करने के बजाय उसका माँ बाप एंगेज करने के लिए उसको कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया, जो पाइथन और जावा सब स्क्रिप्ट सभी सीख लिया। बाद में उसका इतना उसके अंदर इंटरेस्ट आया कि वो खुद का बना के वर्ल्ड वेल्स और उसने बेच दिया, और बेचने के बाद उसको $1 मिलियन पैसा भी कमा लिया। पैसा बड़ी बात नहीं है, बात है कि उसका नाम जी इतना हो गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको भाषण के लिए पेब्रॉक कॉलेज में बुलाया। उसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्रिस्टो सोसाइटी के प्रेब्रॉक कॉलेज में उसको व्याख्या देने के लिए, उसको व्याख्यान मतलब भाषण देने के लिए बुलाया। उसके बारे में कैसे कैसे क्या किया उसके बारे में पूरा बताने के लिए बुलाया। तो कहने का मतलब है, उम्र मोहताज नहीं है। आदमी को हुनर होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। और अगर इनिशियल है ना, जानकारी हो, तो बच्चा आगे बहुत टाइम हो जाता है, मिल जाता है उसको आगे। अगर अभी डेवलप हो तो आगे और हो जाता है। तो वो अलग अलग बच्चों पर है, सबका अलग अलग मेरिट, सबकी अलग अलग सोच, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है बच्चों का। कोई तो क्रिकेट में, कोई किसका, तो सबका अलग हो सकता है। तो ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत जीनियस है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये बच्चा? अगर अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं कि आपके भी बच्चे भी जीनियस हो, तो आप इनिशियल से उसको खेलते खेलते कुछ, उसको ऐसा नहीं लगे कि बच्चे को कुछ हम सीख रहे हैं, उसको खेलते खेलते कुछ कुछ सिखाते रहिए, जिससे आगे देखिए कि अपने आप वो रास्ता पकड़ लेगा और खेलेगा भी, साथ में इसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। और नहीं तो बड़ा होने पर कोई इंटरेस्ट एक साथ डेवलप नहीं होता है। तो बचपन से उसका सॉफ्टवेयर में उसके पापा थे सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसने अपने बच्चे को कर दिया। बच्चा में अपने आप इंटरेस्ट आ गया और अपने आप खुद बनाया। तो बहुत प्राउड फील करता होगा उसका पेरेंट्स। और
जो भी देख रहा है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे से बच्चे ने के दिमाग में ये सब आया और कैसे किया वो। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिए। तब तक इतना ही, नमस्कार।